So good evening future officers, welcome to EduTap and welcome to another important revision session in which we are going to revise the important reports and indices for the month of July 2025. So my dear friends, finally we all know that the notification is out and I believe कि आप सभी ने अपने फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया होगा। और दोस्तों हमारी जो रिवीजन सेशन सीरीज थी जिसको हमने थोड़ी देर के लिए रोक दिया था ड्यू टू द चेंज इन द शेड्यूल ऑफ द सीरीज, so now let me tell you that we are resuming the series of this monthly revision session. I can see in the chat box कि काफी सारे messages आए हुए हैं कि सर अभी हमारा live session भी है and here too we are already having a revision session. So कैसे हम इसको करें? So do not worry guys, मैंने आपका ये doubt point note कर लिया है and we will definitely be taking required action on the same. ठीक है, so that आपकी parallel classes ना हो arrange. Okay, but for now we have to conduct this session and I hope that आप सभी अच्छे से प्रिपेयर करके आए होंगे for the month of July 2025 important reports and indices. Because guys today is the revision session, we will be analyzing that whether you have retained all the important information about the important reports and indices for the month of July 2025 or not. क्योंकि जुलाई मंथ आपका एक काफी इंपॉर्टेंट मंथ है दोस्तों, क्योंकि आपका पेपर है 18th of October को, राइट? तो यहाँ पर आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर प्लस 1st to 10th of October का करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट है. So that's why July is that month which is really going to be very helpful for your upcoming exam. तो शुरू करते हैं without wasting any more time आज का सेशन. और आज के सेशन में दोस्तों अराउंड 25 क्वेश्चंस आई एम हैविंग फॉर ऑल ऑफ यू. आप एक ब्लैंक पेपर को लेकर बैठिए क्योंकि अब फाइनल वो घड़ी आ चुकी है दोस्तों जब हमें इंश्योर करना होगा और आइडेंटिफाई करने होंगे अपने वीक एरियाज को. वो कैसे पता चलेगा? जब आप देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन को आपने करेक्टली आंसर किया है और कौन से क्वेश्चन को इनकरेक्टली आंसर किया है. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को. द फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन, द क्वेश्चन इज ऑन स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग रिपोर्ट 24-25. So basically when it comes to this report analyzes that how exactly we are following the principle of reduce, reuse and recycle, right? और स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग्स, तो स्वच्छ भारत अभियान दोस्तों आप सभी ने देखा है कि इंडिया के अंदर रिलीज हुआ था और इंप्लीमेंट हुआ है. उसका क्या इंपैक्ट है, क्या रिजल्ट है, तो ये सब हम एनालाइज करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए. तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ करेक्ट है. So there are only 3 steps that you are required to follow is to solve this question. The first part is just try to identify the central topic of this question, that is Swachh Survekshan ranking report 24-25. Second part is you have to identify the demand of the question. What is the demand? To identify the correct statement. And the third part is to analyze the keywords. Okay, तो दोस्तों यहां पर सबसे पहला स्टेटमेंट, the statement is the 24-25 edition represents 9th edition of Swachh Survekshan exercise, जिसको 2016 में लॉन्च किया था टू बेंचमार्क सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स अक्रॉस सिटीज. इंडिया के अंदर जितने सिटीज हैं वहां पर सैनिटेशन का क्या स्टैंडर्ड है, दैट इज व्हाट वी आर एनालाइजिंग एंड असेसिंग एज अ पार्ट ऑफ दिस सर्वे. सेकंड स्टेटमेंट, इट वाज गाइडेड बाय द सेंट्रल थीम ऑफ रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज, हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. थर्ड स्टेटमेंट, इस साल कितनी अर्बन लोकल बॉडीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है. So all these statements, all these keywords we have to analyze कि क्या यहाँ पर कोई mistake है या फिर सभी statements correct हैं. I can see in the chat box everybody is saying option D is the right answer. Yes, absolutely right. Option D is the right answer to this question number 1, which is on Swachh Survekshan ranking report 2024-2025. Harshal, I have already addressed your doubt about the session. Do not worry, just bear this one day, right? And after that, we will definitely be taking the required action on the same. Don't worry about it. बढ़ते हैं अपने next question की तरफ. Next question on the same report. Now you have to identify the correct statements again. पहला statement, for the first time, cities grouped into 5 population categories, from very small cities to million plus cities. Second statement, Super Swachh League को introduce किया गया इस साल to honor cities that consistently excelled in earlier surveys. Third statement is Prayagraj was recognized as the best Safai Mitra सुरक्षित शहर in 2024-2025 rankings. So दोस्तों आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं. देखिए कोई भी चेंज अगर एक फ्लैगशिप रिपोर्ट के अंदर होता है तो क्या चेंज हुआ, उसके मेथड में क्या चेंज हुआ, और टॉप परफॉर्मर कौन है, वर्स्ट परफॉर्मर कौन है, क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है, ये सभी चीजें हमें कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कमिंग टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइस.
हमने सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को डिस्कस किया है। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहां पर लेट मी सी हु विल गिव मी द राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अटेम्प्ट जब तक आप नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि यहां पर आपको एक क्वेश्चन आता था या नहीं आता था, राइट। सो हियर आई कैन सी दैट most of the people are going with option A, that is 1 and 2 only. That is absolutely right. So अगर हम बात करते हैं प्रयागराज की, was प्रयागराज recognized as best सफाई मित्र सुरक्षित शहर? Answer is no, because it was the best Ganga town and not the best सफाई मित्र सुरक्षित शहर. That's why third statement is incorrect. So that's how we need to identify in the examination. Let me tell you guys, आपका last year का जो पेपर था, it was dominated by reports, right? सो दैट्स वाई जो आज का सेशन है इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। एब्सोल्युटली राइट गुरुराज इन यूट्यूब नाइजीरिया, यू हैव गिवन द राइट आंसर। हर्षल इज गिवन द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। तो दोस्तों थोड़ा देखते हैं इस रिपोर्ट को और डिटेल के अंदर। सो बेसिकली दिस रिपोर्ट वाज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और इंडिया के अंदर जो सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स हैं अक्रॉस ऑल द सिटीज उसको कंपेयर किया जाता है, असेस किया जाता है, सो दैट वी कैन सी दैट विच सिटीज आर परफॉर्मिंग वेल, और उसके साथ साथ हम कैसे कौन से पॉलिसी इंटरवेंशंस को ले सकते हैं सो दैट वी कैन इंप्रूव द स्टेटस ऑफ अदर सिटीज ऑल्सो। दिस ईयर इट वाज द 9th एडिशन। सबसे पहली बार 2016 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, और इस एडिशन की एक स्पेशल थीम है दैट इज रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। ओके, नाउ अगर हम बात करें इस साल जो नई 5 कैटेगरीज के अंदर सिटीज को डिवाइड किया गया, बेसिकली इट इंक्लूड्स more than 10 lakh, 3 lakh to 10 lakhs, 50,000 to 3 lakh, 20,000 to 50,000 and less than 20,000. तो हम नीचे से ऊपर जाते हैं। सो लेस देन 20,000 है जहां पर पंचगनी, पतन, पन्हाला, बिशरमपुर, बुधनी ने टॉप किया है। 20,000 to 50,000 में ये हमारे सिटीज हैं, 50,000 to 3 lakhs में ये सिटीज हैं, 3 lakh to 10 lakh में ये हैं। पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर सबका नाम आपको याद नहीं करना है। आपको क्या याद रखना है कि बेसिकली ये याद रखिए कि ठीक है ये हमारी 5 कैटेगरीज थी, बट ऑन द टॉप मोर देन 10 लाख वाला डेटा याद करिए, विच इंक्लूड्स इंदौर, सूरत, नवी मुंबई एंड विजयवाड़ा। These are the 4 cities which are on the top in terms of more than 10 lakh population cities according to the Swachh Survekshan report. That's the most important part. इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्वच्छ शहर की, तो स्वच्छ शहर इस बार लॉन्च किया गया, राइट। सो पॉपुलेशन कैटेगरी अगर हम बात करें मोर देन 10 लाख के अंदर, on the top it was Ahmedabad followed by Bhopal and then Lucknow. So ABL, Ahmedabad, Bhopal, Lucknow are the top 3 cities in terms of more than 10 lakh in terms of स्वच्छ शहर। तो स्वच्छ शहर की रेस में ये हमारी सिटीज ऑन द टॉप हैं। ओके, इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो सिकंदराबाद कैंटनमेंट, उसको बेस्ट कैंटनमेंट अवार्ड मिला है फॉर द सैनिटेशन एफर्ट्स। तो बेस्ट कैंटनमेंट बोर्ड अवार्ड हैज बीन गिवन टू सिकंदराबाद कैंटनमेंट। I hope this part is clear to everyone. I can see in the chat box everybody has given the right answer to this question, guys. बढ़ते हैं अपने next question की तरफ। अगला question एक और important report से, that is Sustainable Development Goals National Indicator Framework Progress Report. My dear friends, we all know that we want to achieve Sustainable Development Goals by 2030, right? So basically, what is the performance of Indian states in terms of तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हमारी क्या प्रोग्रेस है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क को बनाया गया, और इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क को रिलीज किया, इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को रिलीज किया है रिसेंटली बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है दोस्तों, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, और प्लीज ट्राई टू गो थ्रू these 3 statements and try to identify the right answer. Okay, so here the first statement is proportion of men, women and children in the poverty declined from 24.85% to 14.96% in 2019-2021. So वो men, women and children who are living in the poverty, वो decline हुआ है number, right? Next part, proportion of population covered by social protection. दोस्तों social protection इंडिया के अंदर कितने परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन को दी जाती है, तो इसके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिली, एंड इट हैज इंप्रूव्ड टू 64.3% इन 2025। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है।
Third statement, gross value added in agriculture per worker was 94,110 in 24-25. तो ये तीन स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर. ओके, लेट्स सी हु विल गिव मी द राइट आंसर हियर. The question number 3, people are saying option D is the right answer. Yes, absolutely right. All these three statements are correct here with respect to Sustainable Development Goals, National Indicator Framework, Progress Report 2025. दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये जो हमें कवर करनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. लेट मी टेल यू हियर, ये रिपोर्ट सिर्फ फेज 1 के लिए नहीं बल्कि फेज 2 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेज 2 में आपको थोड़ा फॉर्डर मटेरियल भी चाहिए होता है फॉर द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. तो वहां पर आप डेफिनेटली इस रिपोर्ट के डेटा को यूज कर सकते हैं. ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ. सेम रिपोर्ट से क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्टेटमेंट यहां करेक्ट है. तो दोस्तों इस बार हमारी डिफरेंट लाइंस पर क्वेश्चन है. पहली स्टेटमेंट है आपकी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के ऊपर फॉर द टर्शियरी एजुकेशन, जो कि 29.5% हुई इन 2022-2023. सेकेंड स्टेटमेंट, द प्रपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन के अंदर हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर एक्सेसिबिलिटी है टू द हाउस होल्ड्स वो कितना इंक्रीज हुआ है. इट इज कवरिंग अराउंड 99.62% ऑफ द पॉपुलेशन. थर्ड स्टेटमेंट इज अबाउट द प्रपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड्स इलेक्ट्रीफाइड, कितने हाउस होल्ड्स इलेक्ट्रीफाई हुए हैं, दैट इज 92% इन 24-25. तो आपको आइडेंटिफाई करना है यहां पर व्हाट एग्जैक्टली आर द डिफरेंट कीवर्ड्स व्हिच आर मेंशन्ड करेक्ट एंड मेंशन्ड इनकरेक्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स. देखते हैं कौन देगा इस क्वेश्चन का सही आंसर. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्रेंड्स. लेट्स सी हु विल बी गिविंग मी द राइट आंसर हियर. So देखिए ऐसे क्वेश्चंस, why exactly we are discussing these statement based questions, because we can cover more number of data, more amount of data through these questions. और एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं. और लेट मी टेल यू गाइस, अगर आपने थोड़े से टफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द इजियर क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस रिपोर्ट, राइट. सो इसीलिए हमें इसको कवर करना बहुत जरूरी है. सो यस, गुरुराज इज सेइंग दैट it is 100% in 2021-2022 when it comes to household electrified. So that's why third statement is incorrect. Right answer is option C, that is 1 and 2 only. तो option C यहाँ पर सही आंसर है. Absolutely right. सभी स्टूडेंट्स ने दिया इस क्वेश्चन का सही आंसर option C. So that was the most important question about the NIF report, right? इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की, so National Indicator Framework Progress Report was released by National Statistical Office, Ministry of Statistics and Program Implementation. और ये बेसिकली हमें डेटा देता है about the Sustainable Development Goal Indicators in our country across the 17 Sustainable Development Goals, जिनको हम 2030 तक अचीव करना चाहते हैं. और दोस्तों यहाँ सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस रिपोर्ट का, that was about the social protection. आप देख सकते हैं कि 2016 में it was 22% and it improved to 64.3% in 2025. इसके बाद हम बात करें अगर सेलुलर नेटवर्क की, सो कितना प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है जिसको सेलुलर नेटवर्क के अंदर कवर किया गया, सो इट इज 99.28% इन 2024. एंड अगर हम बात करती है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट की, बेसिकली नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है दोस्तों, इट इज द रेट of the newborns, right? It refers to the number of deaths of newborns within the first 28 days of life. So per 1000 live births के अंदर वो कितने ऐसे केसेस है जहां पर चिल्ड्रन जिन्होंने बर्थ लिया बट अंडर 28 days they lost their life. So that is called neonatal mortality rate. तो ये हमारा कितना हुआ है दोस्तों? It has basically reduced to 19 in 2021. तो ये 19 पर आ चुका है 2021 के अंदर. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आई होप दिस इज क्लियर. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. नाउ अगेन एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो दोस्तों काफी जरूरी है. पहले क्या होता था कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को इतना फोकस नहीं किया जाता था. सो यहां पर अब गवर्नमेंट ने फोकस करना शुरू किया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ऊपर भी, और साथ साथ वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की क्या प्रोग्रेस है इसके लिए एक रिपोर्ट को रिलीज किया गया, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की 8 स्टेट्स को यहां एनालाइज किया गया. उसके बेसिस पर रिजल्ट्स दिए गए कि वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो कौन सी उनकी कैटेगरी के अंदर आते हैं, वहां पर क्या प्रोग्रेस है अबाउट अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइट. लेट मी टेल यू हियर, यहां पर सिर्फ 15 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम केटर करते हैं, नॉट 17. तो 2 गोल्स को हम यहां पर नहीं केटर करते, राइट. अब वो कौन से 2 गोल्स हैं ये आप मुझे बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर.
सो बढ़ेंगे पहली स्टेटमेंट की तरफ। इसको रिलीज किसने किया? नीति आयोग ने, अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जहां पर यूएनडीपी इंडिया ने भी टेक्निकल सपोर्ट दिया है। सबसे पहला पार्ट दोस्तों, किसी भी रिपोर्ट की सबसे पहली डायमेंशन है उसकी रिलीजिंग बॉडी। तो रिलीजिंग बॉडी यहां पर क्या है? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड यूएनडीपी इंडिया। आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द टॉप परफॉर्मर। तो मिजोरम का एक डिस्ट्रिक्ट है नाथियाल, which scored the highest in the region with 81.43 points. अगर हम बात करते हैं लोएस्ट पर, तो इट वाज अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट दैट इज लॉन्गडिंग, जो कि 58.71 पॉइंट्स पर था। सो हमने यहां पर कवर किया टॉप परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट एंड द वर्स्ट परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट। टॉप परफॉर्मर इज नाथियाल ऑफ मिजोरम एंड द वर्स्ट परफॉर्मर इट इज विच वन? लॉन्गडिंग इन अरुणाचल प्रदेश। नाउ मूविंग टू द थर्ड स्टेटमेंट, सभी डिस्ट्रिक्ट जो है मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के, वो फ्रंट रनर स्टेटस के अंदर थे। दोस्तों हमें सभी को पता है कि यहां पर जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स की बात करते हैं तो कुछ डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर इन स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है, लाइक फ्रंट रनर, अचीवर, एस्पिरेंट, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं बेसिकली सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट फ्रंट रनर स्टेटस में थे और कोई भी डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेंट और अचीवर कैटेगरी का पार्ट नहीं था। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। So here option E is the right answer, absolutely right. All the people have given the right answer to me. So again, Gururaj, YouTube, Nigeria, Harshal, all the people have given me the right answer. That is option E to the question number 5. इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है, because I asked you that what are the different categories in which the districts are being divided as a part of Northeastern region Sustainable Development Goals Index Report 23-24. तो इसके अंदर वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो कि बिलोंग करती हैं टू दिस रिपोर्ट, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। प्लीज ट्राई टू आइडेंटिफाई द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो 5 ऑप्शंस में आप देख सकते हैं, इट इंक्लूड्स अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर एंड एस्पिरेंट। So what is the right answer here? Right answer is option E, that is all of the above. So all of them are the categories in which the districts are being categorized under the Northeastern Region Sustainable Development Goals report. Absolutely, this is the right answer. I hope this is clear. So दोस्तों अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की, तो नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विद द टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम यूएनडीपी इंडिया, इन्होंने मिलकर इस रिपोर्ट को रिलीज किया। और यहां पर आते हैं आपके टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स। ऑन द टॉप इट्स मिजोरम नाथियाल, मिजोरम का चंफई आपका सेकंड पोजीशन पे था, त्रिपुरा का गोमती थर्ड पोजीशन पे था, नागालैंड का मोकोकचुंग फोर्थ पोजीशन पे था, त्रिपुरा का वेस्ट त्रिपुरा इज ऑन द 5th पोजीशन, राइट। सो दीज आर द टॉप 5 परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स। और अगर हम बात करें वर्स्ट परफॉर्मर की, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स व्हाट इज द नेम ऑफ बेस्ट वर्स्ट परफॉर्मर इन टर्म्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिपोर्ट 23-24। लेट मी सी हु विल गिव मी द राइट आंसर हियर। तो हमने उसको ऑलरेडी अपने पिछले क्वेश्चन के अंदर कवर किया था। अब आप मुझे बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर। सो A5341 डेफिनेटली जीए का सेशन भी होगा, पूरी माइंड मैपिंग के साथ होगा, डोंट वरी अबाउट इट। It is also planned in the upcoming timeline, so we will be conducting that session as well. Okay. So दोस्तों अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, so I told you already that Longding of Arunachal Pradesh, Longding of Arunachal Pradesh is the one which is at the bottom of this particular report, right? With around 58 points. So that's all from this question. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The question is on World Investment Report 2025, International Investments in the Digital Economy. आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्टेटमेंट यहां करेक्ट है। So please try to understand and try to give me the right answer to this question, my dear friends. The question is on the World Investment Report 2025. Let me see who will give me the right answer. So पहला स्टेटमेंट, इस रिपोर्ट को रिलीज किया वर्ल्ड बैंक ने। सेकंड स्टेटमेंट, ग्लोबल एफडीआई जो है वो 11% तक गिरी है 2024 के अंदर। एंड अगर हम इसे मॉनेटरी टर्म्स में देखें, इट वाज 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स। थर्ड स्टेटमेंट, इंडिया की रैंक 15th थी इन 2024 एज टॉप एफडीआई होस्ट इकोनॉमी, जबकि 16th पोजीशन पर था इंडिया इन 2023 व्हेन द इनफ्लो वाज 28 बिलियन डॉलर्स। तो अभी जो लेटेस्ट डेटा आया उसमें इंडिया के अंदर इनफ्लो हुआ है 28 बिलियन डॉलर। हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा इनफ्लो कहां होता है उसकी, तो इंडिया यहां पर 15th पोजीशन पर है। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है।
People are saying option E, but no, option D is the right answer. That is 2 and 3 only. Why? Because यहां पर काफी स्टूडेंट्स ने क्या किया दोस्तों, आप सब ने यहां पर ये चीज मिस कर दी कि इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है. The report is not been released by the World Bank. It is released by United Nations Trade and Development. That is why the first statement is incorrect. And right answer is option D. दोस्तों काफी जरूरी है जब हम कर रहे किसी भी रिपोर्ट को कवर करते हैं तो यहाँ पे रिलीजिंग बॉडी को कवर करना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो आई होप कि आप सभी एक लेसन लेकर चलेंगे यहाँ से कि कोई भी डायमेंशन, चाहे कोई भी रिपोर्ट है, बट किसी भी डायमेंशन को हमें लीव नहीं करना और उस डायमेंशन को अच्छे से कवर करना है. ओके, सो आई होप एवरीबॉडी हैज टेकन द लेसन फ्रॉम दिस रिपोर्ट. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. सो अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है, अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ द एफडीआई आउटफ्लोज. सी, लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने एफडीआई इनफ्लोज की बात की थी, अब बात आती है एफडीआई आउटफ्लोज की. सो आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री फर्स्ट थी, विच कंट्री वाज रैंक्ड फर्स्ट अमंग द टॉप होम इकोनॉमीज ऑफ एफडीआई आउटफ्लोज, और इंडिया की पोजीशन क्या थी इन 2024. सो व्हाट वाज इंडियाज पोजीशन एंड विच कंट्री वाज ऑन द टॉप इन टर्म्स ऑफ एफडीआई आउटफ्लोज. लेट मी सी हु विल गिव मी द राइट आंसर हियर. सो यस, most of the people have given the right answer, that is option A. So United States is on the top and India is on the 18th position. अगर हम बात करें दोस्तों एफडीआई इनफ्लो की, तो वहां पर इंडिया की क्या पोजीशन थी, इंडिया वाज रैंक 15th, राइट, और यहां पर भी टॉप पर यूनाइटेड स्टेट्स ही है इन टर्म्स ऑफ एफडीआई इनफ्लो. आई होप दिस इज क्लियर. सो हम देख सकते हैं इनफ्लो के अंदर भी इंडिया इज ऑन द 15th पोजीशन. लास्ट ईयर इंडिया 16th पोजीशन पर था विद $28 बिलियन. सो दिस इज फॉर द इनफ्लो, राइट. और एफडीआई आउटफ्लो के लिए हमने ऑलरेडी कवर किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स इज ऑन द टॉप एंड इंडियाज रैंक इज 18th. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी 2000 to 2023. ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी दोस्तों. अब सबसे पहला सवाल आपसे अगेन, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि आप सभी रिलीजिंग बॉडी पर ध्यान नहीं दिया था, और मान लीजिए कि अगर एक किसी रिपोर्ट को बहुत सारी बॉडीज ने ज्वाइंटली रिलीज किया है तो उनका नाम भी याद करना बहुत जरूरी है. तो क्या आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे कि मैटरनल मोर्टेलिटी 2000 to 2023 ट्रेंड्स रिपोर्ट के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर basically responsible for the release of this report? To the question number 9, what is the right answer? So some people are saying option A is the right answer, some are going with option D. So Guraj is saying 15, Gopal Reddy A, Harshal saying 9E. So yes guys, option E is the right answer. All of the above is the right answer. Though the report was released by World Health Organization, United Nations International Children's Fund, United Nations Population Fund, World Bank Group and UN Department of Economic and Social Affairs. तो इन सभी ने मिलकर इस रिपोर्ट को रिलीज किया जिसका नाम है मैटरनल मोर्टेलिटी 2000 to 2023. अब दोस्तों इसके बाद दूसरी बात आती है कि क्या डेटा है इस रिपोर्ट का. What is the data that we are required to written from exam point of view? अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर है. तो अगला क्वेश्चन आपके ऊपर है, इंडियाज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो 2023 के अंदर वो कितना था, शोइंग एन 86% डिक्लाइन सिंस 1990. अगर वहीं हम बात करें ग्लोबल रिडक्शन की, तो ग्लोबली कितना मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है और इंडिया का कितना था इन ईयर 2023. ये दो डेटा आपको पता होने चाहिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो व्हाट इज द डेटा फॉर इंडिया? इट इज 80%. फॉर इंडिया इट इज 80, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज 80, एंड फॉर द ग्लोबल रिडक्शन गाइस इट वाज 48%. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Okay, I can see here everybody has given the right answer as option C. Well done guys. बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ. Next report is management effectiveness evaluation for 2020 to 2025 जिसको Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने रिलीज किया. And for you the question is you have to identify which of the following statements are correct. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों, ये आपको आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर. The report is me report, that is management effectiveness evaluation report. सो यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. सबसे पहला स्टेटमेंट है, केरला ने टॉप पोजीशन यहां पर हासिल की है एंड इट इज द ओनली स्टेट टू रिसीव वेरी गुड रेटिंग. सेकंड स्टेटमेंट, अगर हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की, वहां पर चंडीगढ़ इज ऑन द टॉप, जबकि लद्दाख वाज ओनली रीजन क्लासिफाइड एज पुअर. थर्ड स्टेटमेंट, एवरी
Kulam National Park and Dashigam National Park, they were the lowest scoring protected areas. So as per the ME report, which of the following statements are correct here? Let's see who will give me the right answer. So most of the people are saying option B is the right answer, that is option 1 and 2 only. Why so? What is the incorrect part in the third statement? I have already highlighted it. It mentions that these two national parks were the lowest scoring protected areas, but no, they were the highest scoring protected areas, and that's why the third statement is incorrect. Right answer is option B, that is 1 and 2 only. ठीक है दोस्तों, so basically you can see here, अगर हम बात करें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स की यहां पर, तो हमने देखा कि केरला इज ऑन द टॉप, बट विच स्टेट्स आर ऑन द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन. सो सम टाइम टॉप 5 स्टेट्स के बारे में भी ये पूछ लेते हैं, राइट. सो केरला के बाद आए आपके कर्नाटका, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, विच आर ऑन द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, राइट. तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे थे ये हमारे डिफरेंट स्टेट्स, राइट. सो याद रखिए, इन द यूनियन टेरिटरीज इट वाज चंडीगढ़ ऑन द टॉप. अगर हम बात करें फॉर द states which are on the top, it was Kerala. That's it. Next question is on the global Findex database 2025 connectivity and financial inclusion. दोस्तों ये पूरे वर्ल्ड की एक लौती ऐसी रिपोर्ट है which basically provides us कि लोगों के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना आया है और साथ ही साथ वो पैसा कहां पर खर्च करते हैं, राइट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक. दोस्तों वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग, ये इनकी रिपोर्ट्स को कवर करना बहुत जरूरी होता है हमें फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज हम देखते हैं कि एग्जाम के अंदर काफी सारी ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो कि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा रिलीज की गई होती हैं, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट. ओके, सो पहला स्टेटमेंट, ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस को 2011 में पहली बार लॉन्च किया गया, एंड इट फॉलोज दोज पब्लिश्ड इन 11, 14, 17 एंड 21. सेकेंड स्टेटमेंट, जो 2025 एडिशन है, उसने एक नया ट्रैकर लॉन्च किया, दैट इज अ डिजिटल कनेक्टिविटी ट्रैकर. डिजिटल कनेक्टिविटी ट्रैकर टू मेजर मोबाइल टेक्नोलॉजी एक्सेस एंड यूजेज, राइट. थर्ड स्टेटमेंट इज ग्लोबली 79% of the adults have an account with a bank, mobile money provider, or both, which is up by 28 percentage points since 2011. So, which of the following statements are correct here? Let me see who will give me the right answer here. So, दोस्तों जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर. व्हाट इज द राइट आंसर? लेट्स सी हु विल गिव मी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. So such kind of questions from such kind of very important report are being asked in the examination, and that's why we have to make sure that we are covering them comprehensively from the examination point of view. Okay. So most of the people are giving me the right answer to this question, and that is option E. Yes, absolutely right. Option E is the right answer to this question. So all the statements which are given here in the question number 12 are correct to this particular part, right? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ from the same report. Right now you have to identify the right answer, that you have to identify which of the following statements are incorrect. So दोस्तों प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और हमने काफी रिपोर्ट्स को पहले से डिस्कस किया अपने सेशन के अंदर, और आज के रिवीजन सेशन है, तो आज हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे रिपोर्ट्स को, राइट. बट बेसिकली वी विल बी मेकिंग श्योर दैट यू आर एबल टू एनालाइज योर रिटेंशन लेवल्स एंड प्रिपरेशन लेवल की आपने कितना इसको कवर किया है, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी नीड टू सी, राइट. सो इन 2024 60% of the adults in developing economies saved a financial account, marking a 16% point increase since 2021, जो कि fastest growth थी in the last one decade, a very highlighted point of this report. Second statement, अगर इंडिया की बात करें तो अकाउंट ओनरशिप जो है 50 परसेंटेज पॉइंट से इंक्रीज हुई है, रीचिंग 89%. थर्ड स्टेटमेंट, 16% ऑफ द अकाउंट ओनर्स इन आवर कंट्री हैड इनएक्टिव अकाउंट्स. तो दोस्तों इंडिया के अंदर अगर हम बात करें टोटल अकाउंट्स की, तो 16% आपके इनएक्टिव अकाउंट्स हैं. वन ऑफ द हाईएस्ट ग्लोबली कंपेयर्ड टू जस्ट 4% इन अदर लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज. अगर हम बाहर जाएं इंडिया से, तो बेसिकली लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर इट इज 4%, बट इन इंडिया इट इज एट 16%. So let me see who will give me the right answer to the question number 13. What is the right answer? Absolutely right. Most of the people have given me the right answer.
So here people are saying that option B is the right answer. So my dear friends, option B is not the right answer. Right answer is option A, that is one only. तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। सी हमें आइडेंटिफाई करना था कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ना कि करेक्ट है। ओके, so Anisha, these we are covering the reports which are really very important for your upcoming RB grade B officer exam, नाबार्ड एग्जामिनेशन या किसी और एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं जहां पर रिपोर्ट्स पूछी जाती हैं, तो you can definitely attend this session and this session is going to be helpful for your upcoming exam. Okay, so यहां पर देखते हैं दोस्तों, basically 2024 के अंदर 40% of the adults in developing economies saved in the financial accounts, not the 60%. और इसीलिए सिर्फ स्टेटमेंट 1 is incorrect and not the statement 2. तो statement 2 तो सही है दोस्तों, statement 1 was incorrect. That's why right answer is option A. So काफी स्टूडेंट्स ने यहां पर आंसर दिया था इस क्वेश्चन का, that option B is the right answer. No, my dear friends, option A is the right answer. देखिए आते हुए भी आपने यहां पर क्वेश्चन को गलत मार्क कर दिया। अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट्स की बात करते तो आंसर होता ऑप्शन सी। सो ऑप्शन बी किसी भी तरीके से आंसर नहीं हो सकता है। ओके, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट रिपोर्ट की तरफ, दैट इज द 2024 इकोनॉमिक इंपैक्ट ट्रेंड्स रिपोर्ट, जिसको रिलीज किया गया बाय द वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल। This was released along with in collaboration with Oxford Economics, which is one of the following countries does not belong to the group of top 5 largest global travel economies. So दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी कंट्री है यहां पर जो कि टॉप 5 ग्लोबल ट्रैवल कंट्रीज के लिस्ट से बिलोंग नहीं करती हैं। ओके, व्हाट इज द राइट आंसर? We need to identify the country that does not belong to the group of top 5 largest global travel economies. 5 कंपनीज का नाम आपको दिया गया है। लेट्स सी हु विल गिव मी द राइट आंसर हियर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज इंडिया। सो इंडिया इज नॉट ऑन द इन द टॉप 5 लिस्ट गाइस, बिकॉज इंडिया इज ऑन द 8th पोजीशन। इंडिया पहले 10th पोजीशन पर था, अब है इंडिया 8th पोजीशन पे। सो ऑन द टॉप इट इज यूएसए, फॉलोड बाय चाइना, जर्मनी, जापान, यूके, एंड these are the top 5 countries. 8th पोजीशन की बात करें तो इट इज इंडिया which is on the 8th position. That's why right answer is option D. Okay, that is the right answer. Moving to the next question. Next question from the same report, 2024 Economic Trends Report released by the World Travel and Tourism Council. You have to identify which of the following statements are incorrect. So दोस्तों, you are having just 40 seconds. Please tell me the right answer in the chat box in the next 40 seconds. Let's see who will give me the right answer. एक एक डेटा को, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझकर चलिए दोस्तों, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। जो हमारे डेटास हैं इनको अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है, इनको देखना बहुत जरूरी है। टू द क्वेश्चन नंबर 15, सो सम पीपल आर सेइंग ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेट्स सी whether it is right or wrong. So Gurraj is saying that it is 357 million jobs that should be there. So अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट 1 की, 2024 ट्रैवल एंड टूरिज्म ने 10.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स को यहां पे कंट्रीब्यूट किया, अकाउंटिंग फॉर 10% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। सेकंड स्टेटमेंट, सेक्टर सपोर्टेड 400 मिलियन जॉब्स ग्लोबली, इक्विवेलेंट टू अबाउट 1 in every 8 jobs. Third statement, India contributed 250 billion US dollars to the global tourism economy in 2024. So let's see who will give me the right answer. So people are saying option D. क्या ऑप्शन डी को लॉक किया जाए? सो गाइस ऑप्शन डी की बात करें, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें सो व्हाट एग्जैक्टली इज द इनकरेक्ट पार्ट इन दिस स्टेटमेंट्स, तो पहला स्टेटमेंट है, सॉरी सेकंड स्टेटमेंट है सेक्टर सपोर्टेड 400 मिलियन जॉब्स। नो, इट बेसिकली लेड टू 357 मिलियन जॉब्स। और अगर हम बात करते हैं इंडिया का कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमी, दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई रिपोर्ट कवर कर रहे हैं वहां पर इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है, टॉप परफॉर्मर कौन है, वर्स्ट परफॉर्मर कौन है, तो ये सारी डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए। एंड हियर द इंडियाज कंट्रीब्यूशन वाज 231.6 बिलियन यूएस डॉलर्स एंड नॉट 250 बिलियन यूएस डॉलर्स। दैट्स व्हाई थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 2 and 3 ओनली। एब्सोल्युटली राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2026, जिसको क्वैकरली साइमंड्स ने रिलीज किया था, और आपके सामने 3 blanks यहां पर दिए हुए हैं दोस्तों। सो व्हाट एग्जैक्टली दीज 3 blanks आर आस्किंग यू? तो देयर आर 3 dimensions that have been asked here.
So here you can see the first one is you have to tell me the name of the city which is on the top, which ended London's 6-year run at the top of the rankings, while among Indian cities में कौन सा सिटी जो था वो टॉप पर था, जो कि 98th पोजीशन पर था. इसके अलावा जो थर्ड डायमेंशन है दैट इज ऑन द वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी. तो वर्ल्ड का मोस्ट अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी कौन सा है? इंडिया. अगर हम देखा जाए तो इंडिया के अंदर कौन सा सिटी टॉप पर था और इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पर कौन सा सिटी टॉप पर था, ये सारी चीजें हमें कवर करना बहुत जरूरी है, राइट? सो लेट्स सी हु विल गिव मी द राइट आंसर. पीपल आर सेइंग सियोल, मुंबई एंड Delhi. Option C, that is absolutely right. Option C is the right answer to this question. Seoul was on the top in this particular list. India की बात की जाए तो Mumbai is on the top. अगर overall top cities की बात की जाए तो Seoul is on the top, followed by Tokyo, London, Munich and Melbourne. And among Indian cities, it is Mumbai on the 98th, then Delhi, Bengaluru and Chennai. But अगर हम दिल्ली की बात करते हैं दोस्तों, it was the world's most affordable student city. So याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है. Delhi is the world's most affordable student city according to this report which has been recently released by QS, right? Absolutely. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. The question is on the Forbes richest self-made women on earth list. आपको आइडेंटिफाई करना है ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे टॉप किसने किया, and on the second part you have to identify which personality was from India. ठीक है, तो दोनों का नाम आपको आइडेंटिफाई करना है. Let me tell you the person who is topped from all over the world. She is from Switzerland. What is the name? The name is Rafaela Apont. अगर हम बात करते हैं from India, it was Falguni Nayar which is on the top. So option B is the right answer. Okay, option B is the right answer to the Forbes richest self-made women on earth list. That's all that we need to do from here. So moving to the next question. The question is on the Henley Passport Index 2025. So Henley Passport Index 2025 की बात की जाए, this is basically that particular index which identifies that a person belonging from a particular country, तो कितने countries में without any prior visa visit कर सकता है. So how many countries are there, right? तो यहां पर हर एक कंट्री को रैंक किया जाता है दोस्तों. आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कंट्री टॉप पर थी. So which country was ranked first, right, with the 193 destinations to as a visa-free access? Second part, the country which was placed at 99th with the access to only 25 destinations, which is at the bottom of the index. And then we have asked you that what is the rank of India. तो टॉप पर कौन है, बॉटम पर कौन है और इंडिया की रैंक क्या है. देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई रिपोर्ट कवर करेंगे वहां पर हमें इंश्योर करना है दैट टॉप परफॉर्मर, वर्स्ट परफॉर्मर और इंडिया की रैंक क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो व्हाट इज द राइट आंसर हियर? व्हिच कंट्री वाज ऑन द टॉप? इट वाज सिंगापुर व्हिच इज ऑन द टॉप. एंड व्हेन इट कम्स टू द बॉटम परफॉर्मर कंट्री, इट वाज अफगानिस्तान. एंड व्हेन इट कम्स टू the India's position, it was 77th here. And yes, option B is the right answer to this question. So well done guys, everybody has given the right answer. Guru Raj, Nilesh, Abhinav, Priya, Harshal, YouTube, everybody has given the right answer. Well done. बढ़ते हैं next question की तरफ. National Time Release Study. So National Time Release Study report आई थी and you have to tell me here what percentage of import consignments at the ICPs were released within the 48-hour target under the National Time फैसिलिटेशन एक्शन प्लान 3.0. और इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया था? देखिए, रिलीजिंग बॉडी, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहां पर आपको आइडेंटिफाई करनी है दो चीजें, दो इंपॉर्टेंट डेटा पर इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है. सबसे पहला, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिलीजिंग बॉडी, एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट डेटा इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंपोर्ट कंसाइनमेंट्स एट आईसीपीज जिनको 48 आवर्स के अंदर, टारगेट टाइम के अंदर रिलीज कर दिया गया था. So अगर हम बात करें इस परसेंटेज की, it is 93.33% and CBIC is the name of the body which has released this report. So option A is the right answer. Option A is the right answer to this question. Next question. So Global Unicorn Index 2025 was released recently by the Hurun Global. You have to identify which of the following statements are correct. So दोस्तों, यूनिकॉर्न इंडेक्स को हमने अपने CT 360 सेशन के अंदर भी कवर किया था, राइट? सो आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स है. बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा क्वेश्चन इज द, कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है. पहला स्टेटमेंट, यूएसए वाज रैंक्ड फर्स्ट विद 758 यूनिकॉर्न्स.
Second statement, India ranked third globally with 64 unicorns in 2025. Third statement is basically about the unicorn capital in the world. That is San Francisco topped the list of cities with the most unicorns. And from India अगर हम बात करें तो बेंगलुरु featured in the list. देखिए दोस्तों, आज के सेशन में I believe that all of you are able to observe this कि सभी जो important data हैं एक रिपोर्ट से पूछे जा सकते हैं. We have tried to cover them. लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई रिपोर्ट है, किसने रिलीज किया है, कौन टॉप पर है, इंडिया की पोजीशन क्या है, और अगर कोई और डायमेंशन है तो वहां पर इंडिया से कौन सा सिटी है या स्टेट है जो कि टॉप पे है, वर्ल्ड लेवल पे कौन टॉप पे है. ये सारे डायमेंशंस को आज हम कवर कर रहे हैं. एंड लेट मी टेल यू हियर, अगर आप आज का सेशन कवर कर लेते हैं अच्छे से तो आपकी काफी अच्छे से रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस जो जुलाई 2025 के वो कवर हो जाएंगे विद दीज क्वेश्चंस दैट आई एम आस्किंग टू ऑल ऑफ यू. So what is the right answer? Here option E is the right answer. All the statements are correct. अगर हम बात करते हैं टॉप कंट्रीज की तो USA is on the top with 758 unicorns. अगर हम बात करें सेकंड पोजीशन इट वाज चाइना, देन इंडिया, यूनाइटेड किंगडम एंड जर्मनी. अगर टॉप सिटीज की बात की जाए तो सैन फ्रांसिस्को इज द यूनिकॉर्न कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एंड देन फॉलोड बाय न्यूयॉर्क, बीजिंग. अगर इंडिया से बात करें तो सेवंथ पोजीशन पर आता है बेंगलुरु, राइट. मुंबई आते 22nd और गुरुग्राम आते 27th पोजीशन पे इन टर्म्स ऑफ मोस्ट यूनिकॉर्न्स फ्रॉम द इंडियन सिटीज. एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर. Moving to the next question. As per the statistical review of World Energy 2025, you have to tell me here that what was India's rank among the top consumers of biofuel. तो बायोफ्यूल के टॉप कंज्यूमर्स की बात करें तो इंडिया की रैंक इसके अंदर क्या थी अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट. द रिपोर्ट इज वर्ल्ड एनर्जी 2025, स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2025. व्हाट वाज इंडियाज पोजीशन? इंडियाज पोजीशन वाज फोर्थ पोजीशन. ऑन द टॉप अगेन इट वाज यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड पोजीशन ब्राजील, इंडोनेशिया एंड इंडिया इज ऑन द फोर्थ पोजीशन. अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर हम टॉप प्रोड्यूसर की बात करें बायोफ्यूल की, इट वाज यूएसए ओनली. So USA is already the top consumer as well as the top producer of biofuels. So that is a very important part that we need to understand here from this particular question, right? So we are done with the statistical review of World Energy 2025 report. तो यहाँ पर हमने इसको कवर किया. USA is on the top in terms of global consumer as well as the producer of biofuels, right? And India is on the fourth position. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. Traction Geo Semi-Annual India FinTech Report for the first half of the year 2025 was released, and you have to tell me that what exactly is India's rank in the globally in startup funding in the first half of 2025. तो first half of 2025 के अंदर इंडिया की क्या पोजीशन थी in terms of funding the startups. और second question जो आपसे पूछा गया है, it is what is the name of the city which retained its position as the leading hub for fintech innovation. तो fintech innovation के लिए वो कौन सा सिटी है जो कि टॉप पर बरकरार है. सो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए. सबसे पहले इंडिया की रैंक क्या है और दूसरा कौन सा सिटी टॉप पर है. कौन बताएगा मुझे चैट बॉक्स के अंदर, जल्दी से बताइए. सो व्हाट इज इट? इंडियाज पोजीशन, इंडियाज रैंक इज थर्ड और यहां पर बेंगलुरु इज ऑन द टॉप अमंग इंडिया, राइट. सो द सिटी विच इज रिटेन इट्स पोजीशन एज द लीडिंग हब फॉर फिनटेक इनोवेशन इज बेंगलुरु ओनली. और टॉप 5 कंट्रीज की बात की जाए तो इट इज यूएस ऑन द टॉप, देन यूके, इंडिया, जर्मनी एंड इजराइल. तो इंडिया की पोजीशन याद रखिए, इंडिया इज ऑन द थर्ड पोजीशन. ओके, सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वी आर जस्ट डन विद दैट. अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. दिस इज अ टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट. तो इस लिस्ट के अंदर अ लोन इंडियन हु वाज देयर इन दिस लिस्ट, दैट इज व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई हियर. उस पर्सन का नाम बताइए जो कि एक सोल इंडियन है हु फीचर्ड ऑन दिस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट. सो दोस्तों टाइम की 100 क्रिएटर्स लिस्ट के अंदर कौन था एक लौता इंडियन हु वाज प्रेजेंट देयर. एक काफी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है ये. सो लेट मी टेल यू दैट आज के सेशन में हमने वो रिपोर्ट्स कवर की जो बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल बॉडीज या नेशनल बॉडीज ने रिलीज की. उसके बाद हमने उन रिपोर्ट्स को भी कवर किया जो प्राइवेट बॉडीज ने रिलीज किए हैं और वहां पर भी हमने सभी टॉप 5 को कवर किया है, वर्स्ट को कवर किया है, इंडिया की रैंक कवर की है. व्हाई? बिकॉज लास्ट ईयर दोस्तों आपके रिपोर्ट्स ने डोमिनेट किया था एग्जाम के अंदर और इसीलिए रिपोर्ट्स को कवर करना बहुत जरूरी है आपके लिए. ओके, सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज प्राजक्ता कोहली. प्राजक्ता कोहली इज द राइट आंसर. लेट्स सी हु हैज गिवन द राइट आंसर. गुरुराज, सागर, प्रिया, 033, यूट्यूब नाइजीरिया, अनीशा, एवरीबडी हैज गिवन द राइट आंसर. वेल डन. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. द क्वेश्चन इज ऑन अमेरिकाज रिचेस्ट इमिग्रेंट्स 2025.
So this report was released by Forbes. आपको आइडेंटिफाई करना है which country was ranked as the leading country of origin for billionaire immigrants. तो billionaire immigrants के लिए वो कौन सी कंट्री है which is the leading country of origin, और इसके साथ साथ आप मुझे बताएंगे what is the name of the richest Indian American in the United States who is also the CEO of Scalar. तो स्केलर के ये सीईओ हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है उस पर्सन का नाम जो कि टॉप पर है, राइट? हु इज द रिचेस्ट इंडियन इन द यूनाइटेड स्टेट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों आपको ये भी कवर करना था अमेरिका के रिचेस्ट इमिग्रेंट 2025 रिपोर्ट के अंदर व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री विच इज द लीडिंग कंट्री ऑफ ऑरिजिन. सो लेट्स सी हु विल टेल मी द राइट आंसर. एब्सोल्युटली राइट. सो जय चौधरी उसका नाम है एंड इंडिया इज ऑन द टॉप हियर. Option C is the right answer to this particular question number 24. I can see everybody has given the right answer, and my dear friends, let me tell you here that this was the last question of our today's session. तो आज के सेशन में हमने वो सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को कवर किया है जो कि आपकी जुलाई मंथ के लिए इंपॉर्टेंट है. और लेट मी टेल यू, अगर आपने आज के सेशन की इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर कर लिया तो ओवरऑल आपके सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स यहां से कवर हो जाएंगे दोस्तों, राइट? सो आई होप दैट टुडे ऑल ऑफ यू रियली लाइक द सेशन. And still, my dear friends, let me tell you that we are yet to come with more sessions for the revision of the upcoming months, right? Because अभी हम जुलाई पर हैं, फिर अगस्त को कवर करना है, सितंबर को कवर करना है, right? So काफी इंपॉर्टेंट है ये सेशंस आप सभी के लिए. इसीलिए प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड यू आर ऑल्सो रिवाइजिंग दिस पर्टिकुलर सेशन दैट वी हैव टेकन, क्योंकि पीडीएफ आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी. पीडीएफ आपको मिलेगी दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर. सो पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए. यहां पर आपको सारे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस के अक्रॉस हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे हैं, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, राइट? एंड देन यू कैन अगेन वॉच द सेशन. अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए रिपोर्ट्स की तो आप सेशन को देख सकते हैं. इसके अलावा काफी रिपोर्ट्स ऐसी थी जो हमने ऑलरेडी अपने सिटी 363 सेशन के अंदर कवर की हुई थी दोस्तों. अगर आपने उन सेशंस को भी अटेंड किया है, डेफिनेटली आज के सेशन में आपने काफी रिपोर्ट के आंसर्स को करेक्टली मार्क किया होगा, राइट? So that's all from the today's session, my dear friends. I hope that today's session was really useful and fruitful to all of you. And I have noted down your point about the parallel session that are taking place right now. Right now, I know that आपका एक स्कीम का सेशन भी चल रहा है and साथ ही साथ आपका रिपोर्ट का सेशन भी चल रहा है, right? So we are going to come up with the best possible solution for the same. Don't worry about it. Just make sure everybody that you are pulling up your socks right now, because this is really the high time when you should not just ensure that you have covered all the important current affairs or not, but you should also see that whether you are able to retain them or not. क्या आप उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं. और एक और बात, आज के सेशन में दोस्तों आपका क्या स्कोर है ये मुझे बताइए चैट बॉक्स के अंदर, ठीक है? और यहां से आइडेंटिफाई कीजिए अपने वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग एरियाज को. तो कौन से क्वेश्चंस आपने इनकरेक्टली आंसर किए, उन पर उनका एनालिसिस कीजिए कि वो कौन सा डेटा था जो आप याद नहीं कर पाते हैं. तो उसके बेसिस पर एक आपको पैटर्न मिलेगा एंड दैट विल शो दैट दीज आर योर वीक एरियाज. इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है इन योर प्रिपरेशन एंड एनी अदर डिफिकल्टी दैट यू आर फेसिंग, प्लीज फील फ्री टू connect with us. You can just share your concern at hello@edutap.co.in. You can call us at 8146207241. We have got your back and definitely we will be helping you and resolving all your doubts that you are facing, all your problems that you are facing in the preparation for your upcoming examinations, right? So that's really a good score, Gururaj. So बाकी लोग भी अपना अपना स्कोर कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों. हम मिलेंगे आपको अगले सेशन के अंदर. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, विश यू ऑल हैप्पी लर्निंग.